Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video we have started reading with our chapter number 10 from the book First Flight. The name of the chapter is The Sermon at Banaras, okay? And as we have read in the previous video that this sermon, or we can say this religious lecture, religious teaching, it was delivered by Gautam Buddha, right? Gautam Buddha, who is the founder of Buddhism, and he delivered this famous sermon at Banaras. Banaras is one of the city of India. It is one of the most holy places that is there at the bank of the most holy river Ganga, okay? So Banaras में उन्होंने अपना ये most famous sermon दिया था, and in that sermon he talked about the ultimate destiny of humankind, that is death, okay? So this much we have read in the previous video, and in today's video we will read about the sermon, we will learn about the sermon, okay? And we will complete reading our chapter in this video. So let's begin. Kisa Gautami had an only son and he died, okay? So once there was one woman, the name of the woman was Kisa Gautami, and she was having one child, her only son, okay? And because of some reason her son died. In her grief she carried the dead child to all her neighbors, okay? Now her only son died, but she was not at all ready to accept this thing that she has lost her child, okay? So she was carrying the dead body, she was carrying the dead body of her child to all her neighbors, okay? She was wandering from house to house, she was wandering from one place to another place in her grief. What is grief? Grief means sadness, okay? So she was so sad, she was so upset, and she was not at all ready to accept this thing, accept this reality, in fact, that her child is dead now. So she was carrying the dead body of her child from place to place, from house to house, and she was asking for a medicine, okay? So she was asking for a medicine that can cure her child, okay? And the people said she has lost her senses, the boy is dead, okay? So अब वो एक एक घर जा रही थी and she was asking the same thing. She was asking for a medicine that can, you know, cure her child, or a medicine that can bring her dead child back to life, okay? लेकिन जब लोगों ने सुना कि उनको क्या चाहिए, so लोगों को पता था कि इस तरह की कोई मेडिसिन है ही नहीं, इस तरह की मेडिसिन उनको देना that was something very impossible, because इस तरह की मेडिसिन नहीं है जो कि किसी डेड पर्सन को फिर से अलाइव कर दे, राइट? सो जो लोग थे वो कह रहे थे दैट शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, शी इज नॉट इन हर सेंसेस बिकॉज द बॉय इज ऑलरेडी डेड. जो बॉय है वो ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी है. सो नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, ओके? At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, right? But Kisa Gautami, she was a mother and she was not at all ready to accept this thing, right? So she was carrying the dead body of her child and she was wandering from place to place, and finally she met with a man, and that person replied to her request, okay? So finally she met with a person, and from that person she also requested the same thing. She asked for a medicine for her child, and that person replied to Kisa Gautami, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can, okay? So that person replied that I cannot give thee, thee means you and thy means your, okay? So that person replied that I am not having any kind of medicine for your child, I cannot give you the medicine for your child, but I know a physician, I know one person who can cure your child, who can give a medicine for your dead child, okay? So that person said that I am not a doctor, I am not a physician, I am not having any kind of medicine, but I know one person, I know one physician who can cure your child, who can give you that medicine that will help your child to bring back to life, okay? And the girl said, pray tell me sir, who is it, okay? So after hearing that, Kisa Gautami was very happy, right? So for the first time किसी ने कहा था that yes, इस तरह की medicine है जो तो कोई तुम्हें दे सकता है. So she was very happy and she said that to pray means please tell me sir, who is it? And the man replied, go to Sakyamuni the Buddha, okay? So उन्होंने पूछा Kisa Gautami ने, please tell me who is that physician, who is that person who can cure my child. So that person replied that if you want to, you know, to bring back to life for your child, so just go to Sakyamuni the Buddha, okay?
किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। ओके, सो किसा गौतमी को तो बस यही चाहिए था, उनको सिर्फ अपने डेड सन को फिर से लाइव करना था, फिर से जीवित करना था। सो एट वंस शी रिपेयर्ड टू द बुद्धा, रिपेयर्ड मीन्स वेंट। ओके, सो एट वंस शी वेंट टू द बुद्धा एंड देयर शी क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। ओके, सो शी वेंट टू बुद्धा एंड आफ्टर रीचिंग देयर she one more time she asked for the same thing. She said that Lord and Master, please give me the medicine that will cure my boy, right? Cure means to heal. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. Okay, so जब गौतम बुद्धा ने पूरी बात सुनी, पूरी बात उनको समझ में आ गई थी कि क्या हुआ है और अब ये जो लेडी है किसा गौतमी क्या चाहती है। ओके, सो आफ्टर हियरिंग दैट गौतम बुद्धा said that okay, I will cure your son, but for that I want a handful of mustard seed, right? मस्टर्ड सीड आप सबने देखा होगा, here in the picture you can see येलो कलर के जो सीड होते हैं मस्टर्ड सीड। सो गौतम बुद्धा ने कहा कि I can cure your son, I will cure your son, but for that I first need a handful of mustard seed, right? handful means one hand में जितना आता है उतनी क्वांटिटी के मस्टर्ड सीड मुझे चाहिए। and when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, right? what is procure? procure means to obtain or to get, right? so किसा गौतमी सुन के बहुत हैप्पी हो गई थी कि ओनली वन हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाने से गौतम बुद्धा जो है उनके बेटे को क्योर कर देंगे। सो उनको लग रहा था कि तो बहुत ही इजी टास्क है, मस्टर्ड सीड तो मैं इजीली ले आऊँगी, राइट? सो बहुत हैप्पी थी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि दैट शी इज जस्ट गोइंग टू गेट टू ऑब्टेन द मस्टर्ड सीड्स। ओके, सो जस्ट देन गौतम बुद्धा एडेड, राइट? गौतम बुद्धा ने अपनी बात में ऐड करते हुए, अपनी बात कंटिन्यू करते हुए उन्होंने आगे क्या कहा? द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस when no one has lost a child, husband, parent or friend. Okay, so this was the condition of Gautam Buddha. Gautam Buddha ने कहा that I want one handful of mustard seed, but the condition is that those mustard seeds should be get from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. It means वो mustard seed तुम्हें एक ऐसे घर से लाने हैं जहाँ आज तक कभी किसी की डेथ नहीं हुई है, जहाँ आज तक कभी किसी ने अपने फैमिली मेंबर को, अपने रिलेटिव को, अपने बिलव्ड वन को नहीं खोया है, आज तक वहाँ कभी किसी ने अपनी लाइफ लॉस्ट नहीं की है, ऐसा घर तुम्हें ढूंढना है। एंड फ्रॉम दैट हाउस यू हैव टू ब्रिंग वन हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। ओके, सो दिस वाज द कंडीशन दैट गौतम बुद्धा एडेड। Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. Okay, so after hearing the condition, now Kisa Gautami was feeling very miserable. उनको पता था कि इस तरह का घर ढूंढना, now it was not that much of easy task जहाँ ऐसा घर उनको मिल जाए, but still she was hopeful. उनको लग रहा था कि शायद ऐसा घर उन्हें मिल जाएगा। So one more time she went from house to house, one more time she was wandering from place to place and this time she was asking for a one handful of mustard seed, right? अब जब वो एक एक घर जा रही थी जो, तो वहाँ के जो लोग थे they were also having some kind of sympathy her, right? उनको भी उन पे पिटी आ रही थी that she was having only one son और जो उनका only son था उसकी भी डेथ हो चुकी है। So they were also having sympathy for her. Okay, और उन्होंने उससे कहा कि okay, you want mustard seed, take it, here are mustard seed, just take it. Okay, but when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family, they answered her. Okay, but Kisa Gautami, she had to follow one condition. उनको एक condition के according ही mustard seed लेने थे, right? So जब वो ये पूछती that आपकी फैमिली में क्या किसी ने अपनी लाइफ खोई है, okay, वो अगर ये पूछती कि क्या आपके सन और डॉटर और योर फादर और मदर किसी की भी डेथ हुई है इन योर फैमिली, तो ऐसे में सभी लोग क्या आंसर देते थे? दे आंसर्ड हर, alas the living are few but the dead are many. Okay, so they answered her, alas. Alas means it is an expression of sadness, right? So with a great sadness, with a great sorrow, वो ये कहते that the living are few but the dead are many, right? So ये कहते कि आज जो living person है इस फैमिली में वो तो few है comparatively to those person जिनकी डेथ हो चुकी है, right? So जिनकी हमारे फैमिली में डेथ हो चुकी है वो ज़्यादा है comparatively to those जो कि आज यहाँ पे living beings है, right? यानी उनके कहने का ये मतलब था कि
क्योंकि आज इस फैमिली में जितने लोग रह रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा लोग तो वो हैं जो कि ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी है, राइट। सो जनरेशन टू जनरेशन आफ्टर जनरेशन डेथ होती रहती हैं, ओके। सो उन्होंने कहा कि बहुत सारी डेथ हो चुकी हैं और आज जो इस घर में जीवित है वो तो बहुत थोड़े से हैं, पर अगर हम नाम काउंट करें जिन जिनकी डेथ हो चुकी है सो वो तो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर? डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, ओके। इसके साथ में वो ये भी ऐड करते कि वी आर ऑल्सो हैविंग डीपेस्ट ग्रीफ इन आर हार्ट, ओके। हमने भी अपने इतने बिलव्ड को खोया है, हमने अपने इतने रिलेटिव्स को, इतने क्लोज वन पर्सन्स को खोया है, दैट बिकॉज ऑफ यू नो उनके जाने से हमारे मन में, हमारे हार्ट में वी आर हैविंग डीपेस्ट ग्रीफ, ओके। सो अब अगर तुम उनके बारे में बात कर रही हो, उनकी डेथ के बारे में बात कर रही हो, सो प्लीज़ डोंट रिमाइंड अस, ओके। हमें हमारा ग्रीफ याद मत दिलाओ, ओके। We are also having a lot of grief, a lot of sadness in our heart, so please just don't remind us about their death, okay. And there was no house but some beloved one had died in it, okay. So किसा गौतमी she was unable to find a single house, जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई थी, जहाँ पे किसी ने अपने किसी beloved person को, अपने किसी क्लोज वन को नहीं खोया था, ऐसा एक सिंगल घर भी किसा गौतमी को नहीं मिला था, ओके। सो अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा था, धीरे धीरे ये जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, बिगेस्ट ट्रूथ कि हर एक किसी की डेथ होनी ही है, ये एक बहुत ही नॉर्मल, एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, राइट। कि जिस पर्सन ने इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे जिसका बर्थ हुआ है, दैट पर्सन हैज़ टू डाई सम और अदर डे, दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रूथ। और अब ये बात धीरे धीरे किसा गौतमी को समझ में आ रही थी। क्लियर? Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city, okay. So she was wandering from place to place, from house to house, okay, but she was unable to find a single house जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई थी, okay. So she was now very weary, weary means tired, okay. So अब वो बहुत ज़्यादा tired feel कर रही थी and now she was hopeless, अब उनकी सारी जो hope थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी। अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा था that maybe it is impossible to find such a single house and sat down at the wayside। तो वो इतनी tired feel कर रही थी कि वो wayside means road side पे बैठ जाती हैं and she was watching at the lights of the city, okay। So it was the evening time, night time, और जो city lights थी उनको वो देख रही थी as they flickered up, okay। और जो city lights थी वो क्या हो रही थी, they flickered up, flickered means to move irregularly, right। वो बहुत ही irregularly जो थी उस तरीके से वो लाइट्स ऑन हो रही थी, कभी ऑन हो रही थी, कभी ऑफ हो रही थी, राइट। कभी थोड़ी सी डिम हो जाती थी, कभी उनकी लाइट थोड़ी ब्राइट हो जाती थी। सो इस तरह से वो फ्लिकर हो रही थी एंड फाइनली दे वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स स्टॉप बर्निंग, राइट। सो वो वहाँ बैठी हैं रोड साइड पे एंड शी वॉज लुकिंग एट द सिटी लाइट्स दैट वर फ्लिकरिंग अप, राइट। एंड फाइनली दे एक्सटिंग्विश्ड, ओके। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। और जब फाइनली वो सिटी लाइट्स एक्सटिंग्विश हो जाती हैं, फाइनली जब वो बंद हो जाती हैं, देन एवरीवेयर देयर वॉज डार्कनेस। जो डार्कनेस थी, डार्कनेस ऑफ द नाइट, दैट वॉज एवरीवेयर। इट वॉज समथिंग दैट रेन मीन्स टू रूल और टू होल्ड, ओके। सो इट वॉज द डार्कनेस दैट वॉज एवरीवेयर, दैट वॉज रूलिंग each and every place and she considered the fate of man, okay। so at that time किसा गौतमी को ये अल्टीमेट ट्रूथ समझ में आता है, उनको समझ में आता है कि ह्यूमन बींग्स की अल्टीमेट डेस्टिनी तो एक्चुअल में यही है, ओके। that their lives flicker up and are extinguished again, okay। so जो human beings की destiny है वो उनको समझ में आती है। now she was able to realize this thing कि जो human beings है उनकी लाइफ भी ऐसी होती है, उनकी लाइफ भी बार बार फ्लिकर होती है, राइट। हमारी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे हैप्पीनेस के मोमेंट्स आते हैं, सैडनेस के मोमेंट्स आते हैं, राइट। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, हम सबकी लाइफ भी एक्सटिंग्विश हो जाती है, हम सबको भी एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना होता है, हमारी लाइफ भी फाइनली एक दिन स्टॉप हो जाती है। क्लियर? एंड शी थॉट टू हरसेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रेव, ओके। सो अब उनको जब फाइनली ये रियलाइजेशन हो जाता है, फाइनली जब ये अंडरस्टैंडिंग उन्हें हो जाती है, सो नाउ शी वॉज थिंकिंग टू हरसेल्फ दैट हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रेव। नाउ उनको ये बात समझ में आती है कि अब तक वो सिर्फ अपने ग्रीफ के बारे में सोच रही थी, अब तक वो इस बात के लिए दुखी थी कि उनका जो ओनली सन था उसकी डेथ क्यों हो गई, क्यों वो उनका ओनली सन उनसे दूर चला गया। इस वजह से वो इतनी ज़्यादा
ज़्यादा दुखी फील कर रही थी, राइट। सो उनको समझ में आता है वो कितनी सेल्फिश थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, बट डेथ तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कॉमन है सभी के लिए। एक ऐसी फैमिली उनको मिली ही नहीं थी जिसमें आज तक कभी किसी की डेथ नहीं हुई थी, राइट। सो अब तक उनको लग रहा था दैट शी वॉज द ओनली मदर हु हैज़ लॉस्ट हर चाइल्ड, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट बिकॉज शी वॉज अनेबल टू फाइंड अ सिंगल हाउस, राइट, जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। सो अब उनको समझ में आ रहा था दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। ओके, सो फाइनली दिस रियलाइजेशन वॉज विथ हर दैट जो डेथ है वो तो सभी के लिए कॉमन है, सभी को एक ना एक दिन डेथ सभी को होनी है। फिर भी ये जो वैली है ऑफ डेसोलेशन, डेसोलेशन मीन्स अनहैप्पीनेस, राइट। सो ये जो अनहैप्पीनेस की वैली है, इन दिस वैली देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी। व्हाट इज इमॉर्टलिटी? Immortality is the ability to live forever. Okay, so death is something very common to each and every person, but still in this valley of unhappiness there is a path that leads to immortality who has surrendered all selfishness. और उस path पे कौन चल पाता है? A person who has surrendered all selfishness. Surrender means to give up or to hand over. Okay, so a person who has surrendered all kinds of selfishness, he is the person who is able, right, to move on that path that leads him to immortality. Okay, so ये वो realization था जो फाइनली उनको हो जाता है, वो नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग जो उनको वहाँ बैठे बैठे समझ में आ जाती है। क्लियर? The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. Okay, so now finally गौतम बुद्धा ने अपने सरमन में क्या बात कही थी, अपनी रिलीजियस टीचिंग्स में उन्होंने क्या कहा था? So he said that the life of mortals means those who are bound to die, right? So we all human beings, we are mortals, क्योंकि some or the other day हम सबकी डेथ होनी बिल्कुल सर्टेन है, राइट। सर्टेनली हम सबकी एक ना एक दिन डेथ हो जाएगी। सो वी आर मॉर्टल्स। सो उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ कैसी है? हमारी लाइफ ट्रबल्ड है, राइट। सो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, राइट, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ सफरिंग्स एंड पेन इन आवर लाइफ एंड ब्रीफ, और हमारी लाइफ काफ़ी ब्रीफ है, ब्रीफ मीन शॉर्ट, राइट, एंड कंबाइंड विथ पेन, एंड आवर लाइफ इज कंबाइंड विथ पेन, कंबाइंड विथ मिक्सड, राइट। सो हमारी लाइफ में मिक्सचर है, ओके, हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी है, ओके, जॉयज हैं तो सोरोज भी हैं। सो इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इमोशंस, ऑल द फीलिंग्स। ओके, सो हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ कैसी है? इट इज ट्रबल्ड, इट इज ब्रीफ एंड इट इज कंबाइंड विथ पेन्स एज वेल एज हैप्पीनेस। ओके, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। नेक्स्ट गौतम बुद्धा ने कहा कि ऐसा कोई मीन्स नहीं है, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई भी किसी के पास कोई टूल नहीं है जिसके बेस पे हम डेथ को अवॉइड कर पाए। ओके, सो उनका कहने का ये मतलब था कि ईच एंड एवरी पर्सन जिसका इस प्लेनेट पे, इस अर्थ पे जिसने जन्म लिया है, जिसका बर्थ हुआ है, ही हैज़ टू डाई सम और अदर डे, राइट। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास जिसके बेस पे वो डेथ से एस्केप कर पाए, वो डेथ को अवॉइड कर पाए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, राइट। सो वी ऑल नो अबाउट द लाइफ साइकिल, कैसे हमारा बर्थ होता है, हमारा चाइल्डहुड होता है, फिर हम एडल्ट होते हैं और एक बार हम ओल्ड एज में जब पहुंच जाते हैं, दैट आफ्टर ओल्ड एज व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इट इज डेथ। ओके, ऑफ सच ए नेचर और आर लिविंग बींग्स, और हम जो लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा यही नेचर है, यही हमारी डेस्टिनी है, हम लोगों की लाइफ साइकिल ऐसे ही मूव होती है। सो डेथ एक ऐसी चीज़ है जो कि इनएविटेबल है, जिसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, जिसे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। क्लियर? As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. Okay, next Gautam Buddha was trying to explaining his thing, right? So अपनी बात को explain करने के लिए वो क्या कहते हैं? He gave one example, one comparison, and with the help of that comparison, he is explaining his thing that जिस तरह से ripe fruits होते हैं, okay, suppose कोई tree है जिसपे fruits लगे हुए हैं, so उसमें से जो fruits ripe हो चुके हैं, so ripe fruits में हमेशा danger रहता है कि वो कभी भी फॉल हो सकते हैं। ओके, सो जो फ्रूट्स अभी राइप नहीं हुए हैं उनको तो अभी टाइम है, बट जो राइप हो चुके हैं उनके पास तो हमेशा डेंजर है कि किसी भी टाइम दे कैन फॉल फ्रॉम दैट ट्री। ओके, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। इसीलिए हम जो मॉर्टल्स हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जब हमारा बर्थ होता है तब से ही कॉन्टिन्यूसली हमारे ऊपर एक डेंजर रहता है कि किसी भी समय हमारी डेथ हो सकती है।
as all earthen vessels made by the potter end in being broken, life of mortals. Okay, again he was giving one more example, one more comparison, and now he is saying that as all the earthen vessel, earthen means made of clay and vessels means container or we can say utensils. Okay, और earthen vessels कौन बनाते हैं? पॉटर बनाते हैं. क्लियर? सो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पॉटर के बनाए हुए जो क्ले के कंटेनर्स होते हैं वो फाइनली एंड कैसे होते हैं? कभी ना कभी वो ब्रेक हो ही जाते हैं. ओके, ऐसी ही लाइफ होती है हम ह्यूमन बींग्स की. हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ कभी भी एंड हो सकती है, कभी भी हमारी डेथ हो सकती है. ओके, बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज. ओके, एंड डेथ इज समथिंग दैट इज इनएविटेबल टू ऑल. नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ, राइट? नो मैटर यू आर यंग और यू आर एडल्ट. ओके, सो डेथ कॉमन है. यंग एज में भी डेथ होती है, ओल्ड एज में भी होती है, राइट? सो ऐसा नहीं कि ओनली आफ्टर ओल्ड एज ही डेथ होगी. आपने अपनी फैमिलीज में, अपने आसपास देखे होंगे ऐसे केसेस जहां यंग एज में भी डेथ हो जाती है, राइट? बिकॉज ऑफ सम डिजीज, बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट और एनी अदर रीजन यंग एज में भी डेथ होती है, राइट? सो डजंट मैटर इफ यू आर यंग, इफ यू आर एडल्ट, इफ यू आर ओल्ड, कभी भी डेथ हो सकती है. बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज. ओके, एंड डेथ इज वेरी मच कॉमन टू बोथ द पर्सन. इफ समवन इज फूल, इफ समवन इज अ पर्सन हु इज हैविंग नो इंटेलिजेंस, राइट? जो बिल्कुल भी विजडम नहीं है जिसमें, और एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा वाइज है. ओके, सो दोनों ही पर्सन ऐसे हैं जिनकी कभी भी डेथ हो सकती है. दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डेथ को अवॉइड कर पाए, जो कि डेथ से एस्केप कर पाए. क्लियर? सो गौतम बुद्ध ये कहने का ये मतलब था, आप चाहे कितने भी पावरफुल हो जाओ, राइट? आप कितनी भी अच्छी एजुकेशन ले लो, आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, आप चाहे कितनी भी मनी, कितनी भी पावर आप अर्न कर लो, बट स्टिल यू कैन नॉट अवॉइड डेथ, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम डेथ, राइट? डेथ उतनी ही कॉमन है आपके लिए जितनी कि किसी दूसरे पर्सन के लिए है, बिकॉज ये एक नेचुरल फैक्टर है, ये एक नॉर्मल फैक्टर है हम ह्यूमन बींग्स का. क्लियर? All fall into the power of death, all are subject to death. नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हम सभी ह्यूमन बींग्स, हम सभी जो डेथ की पावर है उस पावर से हम एस्केप नहीं कर सकते. डेथ जो है वो इतनी पावरफुल होती है वो दैट इट कैन कंट्रोल ईच एंड एवरी पर्सन, राइट? हम सभी उसी के कंट्रोल में हैं, हम सभी उसी की पावर में हैं. दैट्स वाई वी ऑल आर द सब्जेक्ट टू डेथ. ओके, of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son nor kinsman their relations. Next उन्होंने कहा कि वो सभी people who are overcome by death, right? जिनके ऊपर डेथ ने विक्ट्री पाली है, राइट? यानी कि जिनकी डेथ आ चुकी है, ये बिल्कुल सर्टेन है क्योंकि डेथ अब होनी ही है. सो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ से डिपार्चर ले लेते हैं, वो अपनी लाइफ उनकी एंड हो जाती है और वो इस धरती से, इस दुनिया से वो चले जाते हैं. और ऐसे में अगर एक फादर है वो भी अपने सन को नहीं बचा सकता, राइट? अगर एक फादर के सामने उसका जो सन है, दैट सन इज डाइंग, स्टिल द फादर इज अनेबल टू सेव हिम, राइट? अगर उसकी बच्चे की डेथ होनी है तो ऐसे में उसके फादर भी उसको नहीं बचा सकते. सिमिलरली जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं बचा सकते. ओके, सो जो डेथ है वो इतनी कॉमन है कि हम चाह के भी किसी को सेव नहीं कर सकते, हम डेथ को बिल्कुल भी रोक नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते. नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, राइट? किन्समैन मीन्स जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो चाहे कितने भी दुखी हो जाएं किसी की डेथ से, बट वो उनकी डेथ को रोक नहीं सकते, वो उसको उसकी डेथ से एस्केप नहीं करवा सकते, बचा नहीं सकते, सेव नहीं कर सकते. मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off. ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं मार्क, बहुत ध्यान से, यानी बहुत ही प्रोमिनेंटली वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो एक दूसरे रिलेटिव की डेथ पे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं. लेमेंटिंग मीन्स इट इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, राइट? सो अपने किसी रिलेटिव की डेथ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, राइट? वो बहुत ज़्यादा सैडनेस फील करते हैं, सोरो फील करते हैं, बट स्टिल वो किसी की डेथ को रोक नहीं सकते. आप कितना भी दुखी होते रहिए, वन बाय वन जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, वन बाय वन सभी की डेथ होती जाती है और आगे भी होती जाएगी, राइट? नो मैटर आप कितना दुखी फील करते हैं, आप कितने ज़्यादा उदास हो जाते हैं, कितना सैडनेस, कितना सोरो आप फील करते हैं, इट डजेंट मैटर. आपके सभी रिलेटिव्स की डेथ वन बाय वन होती जा रही है और होती जाएगी. ओके,
लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, और ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे ही किसी ऑक्स को स्लॉटर पे ले जाया जाता है. स्लॉटर मीन्स किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, राइट. सो जब किसी ऑक्स को स्लॉटर के लिए लेके जाया जाता है सो उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो किंग्समैन हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं, बट स्टिल दे कैन नॉट सेव दैट ऑक्स. ओके, सिमिलरली हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो एक दूसरे की डेथ पे बहुत सैड फील करते हैं, बहुत सोरो फील करते हैं, राइट. वो अपना दुख जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट स्टिल दे कैन नॉट सेव देयर लाइफ. वो उनका अपने रिलेटिव्स को उनकी डेथ से सेव नहीं कर सकते. ओके, so the world is afflicted with death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world. next गौतम बुद्धा ने कहा कि ये जो वर्ल्ड है, जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, दिस प्लैनेट इज afflicted with death and decay. afflicted means affected by, right. so यहाँ पे डेथ और डिके जो है ये इतना कॉमन है, इतना ज़्यादा है कि ये जो पूरा जो हमारा वर्ल्ड है इट इज़ अफेक्टेड बाय डेथ एंड डिके. इसीलिए जो वाइज पर्सन्स हैं, राइट, जो पर्सन अपनी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं, नॉलेज ले चुके हैं अबाउट दिस रियलिटी, अबाउट दिस फैक्ट, वो कभी भी ग्रीव नहीं करते, वो कभी भी सोरो नहीं फील करते, वो कभी भी सैडनेस नहीं फील करते. क्यों? बिकॉज दे नो द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. उन्हें इस वर्ल्ड की टर्म्स पता है, इस वर्ल्ड के रूल्स उन्हें पता है. एंड व्हाट इज द रूल? द रूल इज जिसका बर्थ हुआ है दैट पर्सन हैज टू डाई सम और द अदर डे. दैट इज द बिगेस्ट रूल ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट. सो इसीलिए जो वाइज पर्सन है, जिनको इस ट्रुथ की नॉलेज है, जिनको इस ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग है, वो कभी भी किसी की डेथ पे सैडनेस फील नहीं करते हैं, राइट. लेकिन जिन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो कॉन्टिन्यूसली सैडनेस फील करते हैं, सोरो फील करते हैं. ओके, सो गौतम बुद्धा के कहने का ये मतलब है कि जो डेथ है दैट इज़ वेरी मच कॉमन, दैट इज़ वेरी मच नेचुरल, वेरी मच नॉर्मल टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट. एवरीवन हु इज बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट हैज़ टू डाई सम और अदर डे, राइट. लेकिन ऐसे में अगर हम किसी की डेथ पे कॉन्टिन्यूसली हम सोरो फील करेंगे, कॉन्टिन्यूसली अगर हम सैडनेस फील करेंगे, सो डेट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. क्योंकि डेथ तो होनी ही है, अगर किसी की डेथ डिसाइड है सो उसकी डेथ तो होनी ही है. क्लियर? Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. Next उन्होंने कहा कि अब डेथ होना तो कॉमन है, ये तो उन्होंने बता दिया, बट आफ्टर द डेथ जो रिलेटिव्स हैं, राइट, जिसकी डेथ हुई है उसके जो क्लोज वंस है, उसके जो रिलेटिव्स है, उसके जो बिलव्ड हैं, वो कैसे रिएक्ट करें, वो कैसे बिहेव करें. सो उसके बारे में गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि अगर आप किसी की डेथ पे कॉन्टिन्यूसली इफ़ यू आर वीपिंग, इफ़ यू आर क्राइंग, राइट, एंड इफ़ यू आर ग्रीविंग, तब आपको कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा. बट होगा क्या? ऑन द कॉन्ट्रेरी, पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा नहीं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑपोजिट क्या होगा? हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. अगर आप कॉन्टिन्यूसली इफ़ यू आर क्राइंग, यू आर वीपिंग, यू आर ग्रीविंग, तो आपको पीस ऑफ माइंड तो नहीं मिलेगा, बट आपका जो पेन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा ग्रेट होता जाएगा. एंड ग्रेजुअली आपकी जो बॉडी है डेट विल सफ़र, राइट. अब अपनी बॉडी को मुश्किल में डाल दोगे, आपकी बॉडी सफ़र करेगी बिकॉज ऑफ दैट पेन. ओके, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा? आप अपने आप को सिक कर लोगे, आप अपने आप को पेल कर लोगे. यट द डेड आर नॉट सेव बाय हिज लेमेंटेशन. बट जिसकी डेथ हो चुकी है आपके लेमेंटेशन की वजह से, वो तो वापस से जीवित नहीं होने वाला है, राइट. सो गौतम बुद्धा ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में या किसी बिलव्ड वन की, किसी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है, सो आफ्टर द डेथ आप चाहे कितना भी क्राई कर लो, कितना भी आप अपना दुख फील कर लो, एक्सप्रेस कर लो, लेकिन उससे होगा क्या? आप अपने आप को सिक कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को सफ़र करवा रहे हो, राइट. जिसकी डेथ हो चुकी है वो तो वापस नहीं आने वाला है. आप कितना भी लेमेंटेशन कर लो, आप उसे नहीं बचा सकते. यू कैन नॉट ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, राइट. आप कितना भी कर लो, बट आप अपने आप को सफ़र कर रहे हो, आप अपना पीस ऑफ माइंड जो है उसे खो रहे हो, आप उसे नहीं सेव कर सकते जिसकी डेथ हो चुकी है. क्लियर?
He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. Okay, next गौतम बुद्धा ने कहा, if you want peace of mind, if you want some kind of peace, then you have to first draw out the arrow. Okay, what it means? He means to say that like if there is one arrow in our body, right, that is piercing our body, तो जब तक उस arrow को हम बाहर नहीं निकालेंगे, right, as long as that arrow is inside our body, it will keep hurting us, right, it will cause more and more pain, right. But if we want to get free from that pain, if we want to get rid of that pain, that first of all we have to pull out that arrow, we have to draw out that arrow, right. और वो जो arrow है, that arrow is of lamentation, that arrow is of complaint and that arrow is of grief, right. So गौतम बुद्धा ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप ग्रीफ फील करोगे, आप कंप्लेंट फील करोगे, कंप्लेंट किस बात की, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे ही पेरेंट की, हमारे ही बच्चे की या हमारे ही रिलेटिव की डेथ क्यों हुई है, राइट. और जब तक हम इस चीज़ को लेके लेमेंट करेंगे, दुख फील करेंगे, ग्रीफ फील करेंगे, तब तक हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, राइट. तो सबसे पहले हमें इस दुख को ख़त्म करना है, सबसे पहले हमें इस एरो को निकाल के अलग करना है अपने आप से, इस दुख से हमें फ्री होना है. देन ओनली वी कैन गेट some kind of peace of mind. Okay, he who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. Next he said, the person who is able to draw out the arrow and who has become composed means calm. Okay, so he is the person who will obtain or who will get peace of mind. Okay, he who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. Next गौतम बुद्धा ने कहा that the person who has overcome all sorrow, overcome means to get victory, right. So as a person जिसने अपने सभी sorrow पे victory पाली है, he is the only one who will be free from sorrow, right. So अगर आपको अपने सभी दुखों से free होना है, then what is the solution? आपको अपने सभी दुखों पे victory पानी है. ओके, आपको सभी दुखों को, उस दुखों का जो arrow है उसे आपको pull out करना होगा, उसको आपको draw out करना होगा. Then only you will be free, then only you will be blessed. Okay, तभी आपको लगेगा कि now you are free from all kind of sorrows, from all kind of sadness, and then only you will realize that you are blessed enough. Okay, so this is the one of the most famous sermon of Gautam Buddha, one of the most famous teaching, or we can say religious teaching of Gautam Buddha, where he talked about death, right. Death जो कि बहुत common है, but after death जो relatives है वो किस तरह से react करें, किस तरह से behave करें, ये उन्होंने अपने sermon में बताया था. Okay, so students, we have completed the chapter here. I hope the chapter is very much clear to you all, and in the next video we will see the comprehension part. We will solve the questions that are there in the chapter. So see you in the next video. Thank you.